آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ موضوع محبت اور اتحاد کے تحت کرنے کو ہیں۔ اس موضوع کے ساتھ ہم کچھ وقت یہ سوچنے میں گزارتے ہیں کہ ہم کیسے 7 ارب لوگوں کی رہنمائی نجات کو کر سکتے ہیں اور کیسے ہم انہیں خدا کی مرضی میں ابدی نور کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آج خالق کی قوت کی یادگاری کے لیے سبت کا دن ہے۔ خدائے الوہیم خالق نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا اور 7ویں دن کو سبت کے دن کے طور پر مقرر کیا جو ان کی تخلیق کی قوت کی یادگاری کرتا ہے۔ تو پھر اس سبت کے دن پر ہمیں ایک بار پھر اپنے باپ اور ماں کی تخلیقی قوت کے بارے میں سوچنا چاہیے، صحیح؟ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو کس چیز سے آپ موسم کی تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں؟ گرے ہوئے پتے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ جب آپ باہر جائیں تو آپ کو بہت سے پتے گرتے نظر آئیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ پتے رنگ بدلتے اور زمین پر گرتے ہیں تو آپ فوراً موسم کی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کے خیال سے پتے کیوں گرتے ہیں؟ اگر پتے نہ گریں تو اگلے سال سے درخت بڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر درختوں سے پتے نہیں گرتے بلکہ ان سے جڑے رہتے ہیں تو انہیں سردی سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر پتوں میں موجود نمی جم جائے تو اگلے سال درخت مزید نہیں بڑھ سکتے۔ اور کیا چیز بہار اور خزاں میں بہت زیادہ اڑانے کا کام کرتی ہے؟ ہوا۔ درختوں میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پتے جھاڑ سکیں۔ درخت وہیں رہتے ہیں جہاں خدا نے انہیں لگایا تھا، وہ وہاں 100 یا 200 سالوں تک رہیں گے۔ چونکہ درختوں میں خود سے ورزش کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی، اس لیے خدا ان کی ورزش میں مدد کرتے ہیں۔ وہ بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک اس جگہ پر قائم رہتے ہیں جب تک وہ بوڑھے درخت نہ بن جائیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے مہربان خدا صرف درختوں کو مشکل اور قابل رحم زندگی گزارتے ہیں؟ خدا ہوا چلاتے ہیں تاکہ وہ ورزش کر سکیں۔ اگر پتے صرف درختوں سے لگے رہیں تو یہ درختوں کے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ اس لیے سردیاں آنے سے پہلے پتوں کو جھاڑنا پڑتا ہے۔ درخت انہیں خود سے جھاڑ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتے ہیں۔ خدا ہوا بھیجتے ہیں تاکہ ڈالیوں سے پتوں کو جھاڑ دیں۔ اس لیے جب باہر ہوا چلتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی تخلیق کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے آج سبت کے دن پر جو خالق کی یادگاری کا دن ہے، ہم خدا کی مرضی کے بارے میں سوچیں۔ باپ اور ماں نے ہمیں دنیا کے 7 ارب لوگوں کو منادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہرگز ہمیں بغیر کسی وجہ کے کوئی تعلیم، کوئی حکم یا تاکید نہیں کرتے۔ خدا نے ہمیں محبت اور اتحاد کے ذریعے نجات کا آخری کام پورا کرنے کو بھی کہا ہے۔ جب ہم خدا کی تعلیم کی فرمان برداری کریں تو 7 ارب لوگوں کے لیے سیون میں آنے اور خدا کی خوشخبری سننے کا جلالی راستہ ہمارے اپنے طریقے سے نہیں بلکہ خدا کی دور اندیشی کے مطابق کھل سکتا ہے۔ یشوع کے زمانہ میں خدا نے اسرائیلیوں سے کہا کہ آخری دن یریحو شہر کے گرد 7 چکر لگائیں اور للکاریں۔ جب انہوں نے خدا کے کہنے کے مطابق کیا تو کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے خدا کے کلام کی فرمان برداری کی تو انہوں نے یریحو کو فتح کر لیا۔ نوح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور خدا نے نوح کو حکم دیا کہ گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی بنا جس کی ایک خاص لمبائی،
एक खास चौड़ाई और एक खास ऊंचाई हो, और ऊपर से हाथ भर छोड़कर एक रोशनदान बनाना, और उसका दरवाज़ा एक खास जगह पर रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना। जब खुदा ने नूह को ये हुक्म दिया तो नूह ने किया था। किताब मुकद्दस कहती है कि उसने सब कुछ खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। सही? जब उसने खुदा के हुक्म के मुताबिक वो सब किया तो तैयार मसनूआत एक अजीब कश्ती थी जिसमें मस्तूल या पतवार नहीं था। इंसान के ख्यालों में ये एक अजीब सी कश्ती थी। ये बिल्कुल भी साइंसी नहीं थी। ये बहुत गैर साइंसी थी। कश्ती को चलाने के लिए आपको पतवार की ज़रूरत होती है, ताहम कश्ती का पतवार नहीं था। और कश्ती के आगे बढ़ने के लिए उन्हें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो क़ुव्वत हासिल कर सकें, जैसे कि हवा को इस्तेमाल करने वाला मस्तूल। लेकिन कश्ती के पास इस क़ुव्वत को हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं था। नूह ने इसे वैसे ही बनाया जैसा खुदा ने उसे बनाने को कहा था। जैसे ही उसने कश्ती बना ली तो खुदा ने खुद उसे चलाया। खुदा ने इसे चलाया था और इसकी रहनुमाई की थी ताकि ये बाहिफाजत अरारात पहाड़ों की चोटी पर पहुंच सके। हमें भी सिर्फ फरमान बरदारी करने की ज़रूरत है। जब खुदा हमें 7 अरब लोगों को मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ मुनादी करते हुए खुशखबरी का काम मुकम्मल करने को कहते हैं, इसलिए हमें सच्चाई में एक दूसरे से मोहब्बत रखकर और मुत्हिद रहकर 7 अरब लोगों को मुनादी मुकम्मल करनी चाहिए जो खुदा ने हमें सौंपी है। 하나님께서 부탁하신 70억 복음을 다 이룰 수 있는 여러분과 제가 꼭 되길 바라겠습니다. हम पहला कुरिन्थियों बाब 13 आयत 1 से देखते हैं और समझते हैं कि बनी नूह इंसान को बचाने की हमारे खुदा की मर्जी मोहब्बत के ज़रिए पूरी हो सकती है। 바로 이 사랑으로 말미암아 이루게 된다는 것을 살펴보도록 합시다. बाब 13 आयत 1। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठिठनाता पीटल या झंझनाती जहाज हूं। अगर हम में मोहब्बत नहीं है तो हम महज एक ठिठनाता पीटल या झंझनाती जहाज हैं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भीदों और कुल इल्म की वाकफीत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। यहाँ पहला कुरिन्थियों बाब 13 में मोहब्बत के बारे में बात की गई है। मोहब्बत के बगैर हम महज एक ठिठनाता पीटल या झंझनाती जहाज हैं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भीदों और कुल इल्म की वाकफीत हो और यहाँ तक कि अगर हम पैदाइश से मुकाशफा तक सब कुछ हिफ्ज़ कर लें, ख्वाह हम पूरी किताब मुक़द्दस को याद रखें, और यहाँ तक कि अगर हमारे पास पहाड़ों को हटा देने वाला अजीम ईमान हो और अगर हम में मोहब्बत ना हो तो हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हमें कुछ हासिल नहीं होता। आप सब, क्या आप खुशखबरी में ऐसा नतीजा हासिल करना चाहते हैं जो कुछ भी ना हो? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। तो फिर आप में क्या होना चाहिए? आप में मोहब्बत होनी चाहिए। किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पर बयान करती है कि मोहब्बत के बग़ैर सारा इल्म और मोहब्बत के बग़ैर सारा ईमान हकीकत में कुछ भी नहीं है। खुदा की नज़र में ये बेमानी है। हम आयत 4 से जारी रखते हैं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शैखी नहीं मारती और पुहुलती नहीं। नाजीबा काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झुंझलाती नहीं। बदगुमानी नहीं करती। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सहा लेती है। सब कुछ यकीन करती है। सब बातों की उम्मीद रखती है। सब बातों की बर्दाश्त करती है। ताहम हमारे आसपास के हालात हमें आसानी से मोहब्बत की तकमील की इजाज़त नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम शुरू ही से आसानी से पूरा कर सकते हैं। ताहम हमारे खुदा ने कहा कि वो खुशखबरी जो हम मोहब्बत के बगैर करते हैं कुछ भी नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं मेरे पास ज़्यादा इल्म है इसलिए मैं अपने इल्म से दुनिया का ख़ास काम पूरा कर सकता हूँ। ये सच नहीं है। हमारे इल्म में भी मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं सिर्फ ईमान के साथ दुनिया के ख़ास काम को पूरा करूँगा। ये सच नहीं है। इसमें ईमान रखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा ईमान जो मोहब्बत के साथ न मिला हो और ऐसा इल्म जिसमें मोहब्बत न हो। जो कुछ मोहब्बत के साथ न मिला हो वो कुछ भी नहीं है। किताब मुक़द्दस कहती है कि जो कुछ मोहब्बत के साथ न मिला हो वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि खुदा ने यहाँ बयान किया है कि मोहब्बत साबर और मेहरबान है। ये हसद नहीं करती, ये शेखी नहीं मारती और यह फूलती नहीं है। ये नाजीबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, ये झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। ये बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। ये सब कुछ सह लेती है। ये सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। जब हम इस किस्म की मोहब्बत रखें तो 7 अरब लोगों को खुशखबरी की मुनादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे यरीहो शहर गिरा था जब लोगों ने शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाए और लिलकारे थे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि खुदा की पाक मर्जी ये है कि हम अपने माहौल में मोहब्बत और इतिहाद को अमल में लाएं। हमें खुदा की इस पाक तालीम को किताब मुक़द्दस में ढूंढना चाहिए। हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए और अपना सारा दिल अपने खोए भाइयों और बहनों को बचाने में लगाना चाहिए। बाप और माँ तमाम बनीनो इंसान से मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को पैदा किया और उनका एहतियात से ख्याल रखा। आए हम एक बार फिर उनकी मोहब्बत को महसूस करें और मसीह की मोहब्बत को सियून में अपने भाइयों और बहनों को, अपने पड़ोसियों को और उन लोगों को जिन्हें हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं और तमाम दुनिया को पहुंचाएं। हम बाब 13 आयत 8 से जारी रखते हैं। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो क्या हो जाएंगी? एक बार नबूतें पूरी हो जाएं तो वो मौकूफ़ हो जाती हैं। नबूतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। हिकमत, इल्म, ज़ुबानें और नबूतें मौकूफ़ हो जाएंगी और जाती रहेंगी। आयत 9 से जारी रखते हैं। क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। हर काम जो इस दुनिया में किया जाता है वो जुज़वी है। हमारी मुनादी या इल्म दुनिया की सब चीज़ों को जानने से नहीं है। ये बहुत छोटा हिस्सा है। आयत 11 से जारी रखते हैं। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। ये आईना पुराने दिनों में पीतल का बना हुआ आईना है। शायद आप हैरान हों कि आईना बहुत वाज़े होता है। ये क्यों कहा गया है कि ये धुंधला सा है? पुराने दिनों में आईना पीतल से बनता था। वो आजकल की तरह शीशे से नहीं बनते थे। जब आपका चेहरा उन आईनों पर दिखाई देता है तो आप अपने चेहरे के बारे में सब कुछ वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। ये आईना पीतल के आईना कहलाते हैं। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें क्या है? अफजल मोहब्बत है। सबसे अफजल मोहब्बत है। आप सब खुशखबरी के लिए काम करते हुए अगर हम मोहब्बत को खारिज कर दें तो हमारे पास जो इल्म है वो बेमानी है, चाहे हमारे पास कितना ही क्यों ना हो। जब इल्म की ज़रूरत होती है तो लोग इसे ढूंढते हैं, लेकिन जब इसकी ज़रूरत ना हो तो इल्म को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे खुदा ने कहा कि हमें ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन इन तीनों में से अफजल मोहब्बत है। ये सिर्फ इल्म या ईमान से नहीं हो सकता।
खुदा हमें मोहब्बत से खुशखबरी की मुनादी करने को कहते हैं, जो तीनों चीज़ों में से सबसे अफजल है, जिनकी हमें ज़रूरत है, यानी ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। 진행하라는 우리 하나님의 말씀이셨습니다. 예, 그래서 इसलिए मोहब्बत शरीयत की क्या है? 율법에 뭐라고 되어 있습니까? क्योंकि नए अहद और पुराने अहद दोनों में हर काम मोहब्बत के वसीला से तकमील पाता और पूरा होता है। 하는 결론에서 모든 것이 다 이루어집니다. आए रोमियो बाब 13 आयत 8 देखते हैं। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने 남을 사랑하는 자는 क्या किया है? 어떻게 해요? शरीयत पर पूरा अमल किया। 했습니다. जो अपने हम जिन्स से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया है। क्योंकि ये बातें कि जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। 말씀 가운데 다 드러나니라. मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की क्या है? 사랑은 क्या? 율법에 뭐라고요? इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। अगर किसी में मोहब्बत हो तो वो कैसे दूसरों को कत्ल कर सकता है, चोरी कर सकता है, लालच कर सकता है या दूसरों के साथ कुछ बुरा कर सकता है? 악을 행할 수가 있겠습니까? चूंकि खुदा मोहब्बत हैं, इसलिए खुदा हमसे चाहते हैं कि हम 7 अरब लोगों को मोहब्बत के साथ खुशखबरी की मुनादी करें। 모든 그 인류 인생들에게 이 복음을 전파하신 것이 또 우리 हम इसे ज़हन में रखें। 하는 것 우리 꼭 명심합시다. यूहन्ना बाब 13 से हम एक बार फिर खुदा की मर्जी की तस्दीक करते हैं। 확인해 보도록 합시다. बाब 13 आयत 1। इदिफस से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। 사랑했다고 했습니까? क्या खुदा ने शुरू में हमसे थोड़ी सी मोहब्बत की थी और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मज़ीद हमारी देखभाल नहीं करना चाहता था? खुदा ने अपने लोगों से मोहब्बत रखी और उन्हें अपनी मोहब्बत की मुकम्मल हद दिखाई। हमारे खुदा की मोहब्बत हरगिज़ नहीं बदलती। 변함이 없습니다. हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। खुदा की मोहब्बत रखते हुए हमें हर एक शख्स का ख्याल रखते हुए दुनिया के लोगों को खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। 하나하나를 아끼면서 हमें मोहब्बत के साथ उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। 그런 여러분과 제가 되셔야 되겠습니다. पहला कुरिन्थियों बाब 12 आयत 12 देखते हैं। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं और बदन के सब आज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। 우리가 유대인이나 क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हूँ, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। 몸은 한지 제품 चुनांचा बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँवों कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फ़ील वाक़ई खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक रखा है। हम मसीह के बदन के आज़ा हैं। किसकी मर्ज़ी है कि जिस्म इस तरह से बनाए जाएं और हम मखसूस मुकामों पर हों और हम उन किरदारों को अंजाम दें? यहाँ ये कहा गया है कि खुदा ने जिस्म के आज़ा यानी उनमें से हर एक को वैसे ही तरतीब दिया है जैसे उन्होंने उन्हें बनाना चाहा था। हम अपने मुकाम पर वैसे ही हैं जैसे खुदा हमसे चाहते थे। हमें वैसे ही भेजा गया है जैसे खुदा ने हमसे चाहा था। हमारे स्यून के सब अराकीन भाई और बहनें हैं जिन्होंने खुदा का यकसा खून पाया है और खुदा में एक बदन बन गए हैं। अमेरिका के मशरकी साहिल, मगरबी साहिल और जनूबी हिस्सा और शुमाली हिस्सा में मौजूद अराकीन हमारे ख़ानदानी अराकीन हैं। सिर्फ अमरीकी अराकीन ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के तमाम भाई और बहनें भी हमारे तमाम ख़ानदानी अराकीन हैं। इस आलमी गांव में स्यून के तमाम ख़ानदानी अराकीन हमारे ख़ानदानी अराकीन हैं। आज हमने सीखा है कि हमारे खुदा ने हमें एक रूह पिलाया है और ये कि खुदा ने हमें एक रूह में एक होने की तौफीक बख्शी है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि माँ की मोहब्बत में मुत्तहद होना कितना अहम है। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा ने जिस्म के आज़ा को वैसे ही तरतीब दिया है
जैसा उन्होंने चाहा था। आयत 19 से जारी रखते हैं। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता, मगर अब आज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मुहताज नहीं, और न सर पाँवों से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मुहताज नहीं, बल्कि बदन के वो आज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। आयत 23। और बदन के वो आज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजीबा आज़ा बहुत ज़ीबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ीबा आज़ा मुहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मुहताज है उसी को ज़्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरीका न पड़े बल्कि आज़ा क्या करें, एक दूसरे की बराबर किसके लिए फ़िक्र रखें। बाप और माँ की पाक मोहब्बत में जो हमें एक दूसरे की बराबर फ़िक्र करने पर मजबूर करती है, खुदा ने हमारे सियोन को एक ऐसी कलीसिया बनाया है जो आलमी गांव में 7 अरब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करती है, और खुदा इस कलीसिया की क़ियादत कर रहे हैं ताकि दुनिया के 7 अरब लोगों में से अपने तमाम खोए भाइयों और बहनों को बचाने के काबिल हो। आयत 26। बस अगर एक उज़ू दुख पाता है तो सब आज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ू इज़्ज़त पाता है तो सब आज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। आप सब यूं हम 7 अरब लोगों को मुनादी का काम पूरा करते हैं। जब चीज़ें इतनी जल्दी और तेज़ी से पूरी होती हैं तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मोहब्बत और इत्तिहाद है। हमें हरगिज़ इत्तिहाद नहीं खोना चाहिए और मोहब्बत को हरगिज़ नहीं खोना चाहिए। हम मोहब्बत और इत्तिहाद के ज़रिए खुशखबरी की तकमील कर रहे हैं। हम रोमियो बाब 12 से एक और आयत देखते हैं। बाब 12 आयत 10। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को क्या करो? प्यार करो। और क्या करो? इज्जत के रूह से एक दूसरे को क्या बेहतर समझो। कोशिश में सुस्ती न करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दिसों की एहतियाजें रफ़ा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत न करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल न बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जह हो, अपने आप को अक्लमंद न समझो, बद्दी के एवज किसी से बद्दी न करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। आप सब ये सब चीज़ें हम इंसानों के लिए वाकई मुश्किल हैं। ऐसे लोग हैं जो सख्त वर्जिश करते हैं। जब वो वर्जिश करते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। वर्जिश करने से हमारे जिस्म की सूरत बदल सकती है, अगरचे हमारा पेट बड़ा होता है पर यह अज़ला बन सकता है और जिस्म में तवाज़न कायम हो सकता है। जिस्म की शक्ल बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो सकती है जैसे खुदा ने इसे इब्तिदा में बनाया था। जब तक हम खुदा की मर्जी की पैरवी करते हैं सब कुछ ही अच्छा होता है। बाप और माँ हमेशा हमें मोहब्बत और इत्तेहाद से खुशखबरी पर अमल करना सिखाते हैं। उन्होंने खुद हमें मोहब्बत और इत्तेहाद पर अमल करने के नमूने दिखाए। ये एक ख़ास सबक और तालीम है जो खुदा ने हमें आसमानी बादशाही के वली उहद शहजादे को सिखाने के लिए बख्शी है। खुदा ने कहा, जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर अमल किया, और मोहब्बत शरीयत की तामील है, और जो कुछ है तुम करो मोहब्बत से करो। गलतियों बाब 5 में खुदा ने हमें मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करने को कहा, और पहला थिस्सलुनीकियों बाब 4 में खुदा ने हमें सिखाया कि जिन्होंने खुदा से तालीम पाई है उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। ये किसी की ज़ाती तालीम या नज़रिया नहीं है जो हमें सिखाया गया है।
جس سے ہم مسلسل تعلیم پاتے ہیں وہ ہمارے مقدس آسمانی باپ اور ماں کا کلام ہے۔ 계속 교육받고 있습니다. 이대로 해서 ایسا کرنے سے آئیں ہم باپ اور ماں کی پاک مرضی کو تھامے رکھنے کے قابل ہوں جب وہ ہمیں آسمانی شاہی کا ہند کے طور پر 10 شہروں یا 100 شہروں پر اختیار رکھنے کو کہتے ہیں جب ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ 그 거룩하신 뜻을 또 받들 수 있는 여러분과 제가 꼭 되시길 바라겠습니다. اب آئیں ہم زیادہ لوگوں کو اس خوشخبری کی منادی کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو خوشی اور امید دے سکیں جو نا امید زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کی محبت کو زیادہ سے بانٹیں۔ اس امید سے کہ سیون کے تمام خاندانی اراکین ایسا کریں گے، میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ 말씀 마치도록 آپ کا بہت شکریہ۔